ثابت قدمی کے حوالے سے رجال کے لیے کیا ہدایت ہے جی قرآن سے کہ کیسے ثابت قدم ہویا جا سکتا ہے؟ بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہماری خصوصیت ہے جو ہم نے قائم کرنی ہے تمام معاملات کے اندر، کہ ہم ثابت قدم ہو کے رہیں. تو اس سے بتائیے کیسے کیا جا سکتا ہے. جی، جزاک اللہ خیر جی. میں اس کے لیے جی ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اگر آپ نکال لیں، جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے گھر کو بنایا ہے مثابۃ للناس وامنا، ان کے رہنے کی ٹھہرنے کی جگہ اور امن کے ساتھ جہاں پر آ کر یہ ٹھہریں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور لو تم ابراہیم کے مقام سے مصلی. یہ آپ دیکھیں قرآن کریم نے جو جس طرف اشارہ کیا ہے، اس پر ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں وہاں پر ہمیں پتھر کے اندر گڑے ہوئے 2 قدموں کے نشان ملتے ہیں. وہ بہت اہم مقام ہے جی. ایک مومن کے لیے، ایک رجال کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان کو یہ جو آیات ہیں ان حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کتنی اہم ہیں. وہ آگے وَأَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ اس کے بعد پھر طہارہ شروع ہوگا طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیے جو الفاظ ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے مقام سے جو ہے وہ آپ مصلی لے لیجئے. تو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مرد مٹی پر کھڑا ہو اور اس کے پاؤں مٹی میں دھس جائیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں. اگر وہ ریت میں کھڑا ہے تو اس کے پاؤں اگر ریت میں دھس جائیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک پتھر پر کھڑا ہے اور اس پتھر پر اس کے قدموں کے نشان بن جائے. تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی عظمت کے لیے اور دین کی تقویم کے لیے جو محنت و مشقت کی ہے، یہ پوری محنت اور مشقت کا جو سمبل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدم مبارک ہیں کہ جو ان کے اس حجر کے اندر، اس پتھر کے اندر گڑے ہوئے قدموں کے نشان یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کا مصلی دراصل اس مومن کی استقامت ہوتی. مومن کا مصلی مومن کی استقامت ہوتی. ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا ایک دفعہ بھی ہمارے دماغ میں یا ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا ہماری استقامت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی استقامت میں کیا فرق تھا؟ کس قدر ابراہیم علیہ السلام نے ڈیوٹی کی ہے قواعد بنانے کے لیے بیت اللہ کی، کس قدر اللہ کے احکامات کو ان کی پابندی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دیر کھڑے ہوئے ہوں گے، کب تک کھڑے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ایک مومن کے قدموں کی حرارت سے، ایک رجال کے قدموں کی حرارت سے پتھر پگھل جاتے ہیں. وہ قومیں ہمیشہ دنیا کے اندر سرخرو رہتی ہیں کہ جن کے دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور پاؤں گرم ہوتے ہیں. جن کے دماغ گرم ہوں اور پاؤں ٹھنڈے ہوں وہ قومیں دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کرتی. تو استقامت کے لیے بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اسی استقامت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی، اپنی 63 سالہ زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری اسی استقامت کے اندر گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ثابت رہیں. وہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا نا یثبت اقدامکم، تاکہ وہ تمہارے اقدام کو تثبیت کر دے، ان کو مضبوط کر دے، آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں پر آپ کے اندر استقامت آ جائے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے جی، جہاں پر الحمدللہ آج ہمیں بھی اگر اللہ نے ہماری مساجد کے اندر مصلی دے دیا ہے یا اپنے گھروں میں، تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی وہ استقامت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی استقامت تھی؟ کیا یہی وہ استقامت ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھی ہے؟ ہمارا کھڑا ہونا اور ہمارا قائم ہونا کیا ایک ہی برابر ہے؟ کیا یہ ہماری نماز کوئی نتیجہ پیدا کر رہی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نتیجہ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے، اس کے اندر کہیں سے ہمیں کوئی استقامت حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے، ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مصلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ہے، وہ جو 2 قدموں کے نشان ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الرجال کے قدموں کی حرارت سے پتھر پگھل جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بالکل جی. اچھا جی، زبیر صاحب، نیکسٹ میں آپ سے سوال کروں گی رجال کی کامیابی. رجال کا ایک حسن عمل ہے جس کے بارے میں اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں، اور اس کی کامیابی کا کیا راز ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو جی پہلے بہت سے پروگرامز میں ہم بتا چکے ہیں، آج بھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ سورہ یوسف کو ہی ہم لیں گے.
यहाँ से हमें पता, वैसे भी बहुत सी आयत हैं, लेकिन ज़रा मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने टारगेट इसलिए किया हुआ है कि हमारे यहाँ अवाम सूरह यूसुफ के साथ इन दिनों जो है वो बड़ी जुड़ी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि वो देखें कि सूरह यूसुफ के अंदर क्या खूबसूरती है, वो कौन सा राज है कि जिसमें मर्द के हुस्न को पेश किया गया है, मर्द के हुस्न को पेश किया गया है। तो बेसिकली जब तक हम हुस्न याकूब से वाकिफ नहीं होंगे, हमें हुस्न यूसुफ समझ नहीं आएगा अलैहिस्सलाम। जब तक हम हुस्न याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं समझेंगे, हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न समझ नहीं आएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हुस्न ये है कि दोनों बड़ी मुसीबतों में, कि जहां एक पहले बेटा खो दिया है, फिर दूसरा बेटा भी चला गया है, तो वहां पर जो उनके अल्फाज हैं वो इतने कमाल और इस कदर खूबसूरत हैं कि वो आने वाले तमाम रिजालों के लिए, तमाम मर्दों के लिए वो बड़े अहम हैं, और वो हैं सब्र जमील। वहां पर लफ्ज आता है सब्र जमील, तो पता चला कि मर्द का असल हुस्न जो है वो मर्द का सब्र है। जो मर्द सब्र नहीं कर सकते, उनके अंदर कभी जमाल नहीं आ सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जमाली हालत के अंदर उस सब्र को जो है वो उस पर कायम हुए हैं, उन्होंने सब्र किया है। और सब्र के साथ साथ आप कमाल देखिए, कुरान करीम ने सूरह यूसुफ में सब्र को भी बयान किया कि सब्र होता क्या है। अब आप ये देखिए कि बेटों का वापस जाकर अपने बाप को ये बताना कि देखिए हमें उन्होंने खुराक भी दे दी है और पैसे भी वापस लौटा दिए हैं, तो अब आप यूं कर दिए, यूं भेज दीजिए अपने बच्चे को। और उन्होंने कहा ठीक है। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र की हालत में अपने बच्चों को ये बता रहे हैं इस हिकमत अमली के साथ कि जाओ यूसुफ को तलाश करो, अच्छा तुम अब मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, अच्छा तुम अब ये जा रहे हो तो तुम ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, फसब्रुन जमील, उनकी बात भी सुन रहे हैं। तो पता चला कि जो सब्र है ये तो बेहतरीन हिकमत अमली का एक टूल है। हिकमत का सबसे बड़ा टूल जो है वो सब्र होता है, स्ट्रेटेजी। आप क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करें। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन स्ट्रेटेजी के जरिए, हजरत ना कि अल्लाह ने उन्हें हजरत यूसुफ वापस लौटाए हैं, बल्कि उनके छोटे बेटे भी वापस लौटे, और यूं वो सारे बच्चे जो हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आए। तो पता चला कि मर्द का जो सबसे बड़ा हुस्न है, सबसे, क्योंकि अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़वाहिरी हुस्न, बेशक वो बहुत खूबसूरत हैं, और उनकी खूबसूरती जो है उससे कोई इनकार नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन कुरान हमेशा उस खूबसूरती की बात करता है जो क़यामत तक कायम रहे। तो जब आप सब्र यूसुफ, सब्र याकूब को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वो मर्दों का हुस्न होता है जो उन्हें मरने नहीं देता, ये उनको जिंदा रखता है। तो सब्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हुस्न है जी। इसी के अंदर जो है ये राज है कि बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन हिकमत के साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र कर रहे हैं, एक तरफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र कर रहे हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि जुमला, ये जो अरबी अरबी वर्ड है ना, ये बड़ी कमाल अल्फाज हैं। जमील का लफ्ज जो है ये जमल के लफ्ज से है। जमल, जमल कहते हैं, एक तो आमतौर पे जमल ऊंट को कहते हैं, लेकिन जमल लुगत के अंदर जो है वो छोटी छोटी रस्सियों की इजमाली हालत को, यानी मजमूई हालत को भी कहा जाता है। छोटी छोटी रस्सियां मिलाकर जब एक मोटी बड़ी रस्सी बना ली जाती है, जिससे बड़े बड़े बहरी जहाजों को साहिलों पर बांधा जाता है, उस रस्सी को अरबी जुबान में जमल कहा जाता है। तो पता चला कि ये छोटी छोटी रस्सियों की जुमला हालत है। तो सब्र भी जो है ये आप स्ट्रेटेजीज की छोटी छोटी हालतों की एक मजमूई हालत को वो सब्रुन जमील के लफ्ज से ताबीर कर रहा है कुरान करीम, कि ये सब्र की जुमला हालत है। आप ये देखिए कि जो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी स्ट्रेटेजी इख्तियार की है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी वो स्ट्रेटेजी इख्तियार की है। तो मर्द का हुस्न जो है, रजाल का हुस्न जो है जी, वो उनका सब्र होता है, और वो उनकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है जो वो हालात और वाकयात के मुताबिक इख्तियार करते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अज़बैर साहब सब्र को भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में सब्र को भी बहुत फ़र्क फ़र्क तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है कि बस खामोशी इख्तियार करके आप बैठ जाएं। तो सब्र को आप किस तरह से, अगर आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, कि आप जिस तरह आपने रेफरेंस जो दिया है उसमें तो खामोशी भी है, लेकिन उसके साथ एक और भी एलिमेंट आता है, तो आप अगर उसकी जी वजाहत कर जी, दीजिए। मैं जी। अर्ज कर रहा हूँ कि सब्र जो है, क्योंकि इस पर हमारे काफी प्रोग्राम्स हो चुके हैं, बल्कि हमारे तो हमने स्कूल्स में जाके बाकायदा टैबलोज की शक्ल में सब्र को बयान किया है, और बच्चों से वो एक्ट करवाया था हमने, कि हमने बच्चों को एक एक मोमबत्ती दी, और एक बच्चे के हाथ में माचिस दी, और मोमबत्ती को नीचे से ना हमने गोल कर दिया था। तो वो स्कूल के सारे बच्चों को बिठा के हमने उसे कहा कि बेटा ये मोमबत्ती जलाएं। अब उसने मोमबत्ती जलाई। अब वो बच्चा, हमने कहा जी इसको खड़ा कर दें इस टेबल के ऊपर। अब वो बच्चा उसे खड़ा करता था, वो गिर जाती थी। अब वो खड़ा करता था, वो गिर जाती थी। तो ये काफी सारा हमने करवाने के बाद हमने उसे कहा कि बेटा आप इस तरह करें कि इस मोमबत्ती को उल्टा करें, इसी का मोम टपकाएं आप इस टेबल के ऊपर, और फिर आप इसको मोमबत्ती को खड़ा करें।
उस बच्चे ने उसे उल्टा किया, अब वो मोम टपका और फिर उसके ऊपर उसने उस मोमबत्ती को खड़ा कर दिया। तो वहां से हमने उन बच्चों को बताया कि देखिए बेटा, जिस तरह ये मोमबत्ती जो है ये अपने जिस्म से टपकाए हुए मोम पर खड़ी हो गई है, इसी तरीके से अल्लाह करीम ने जब ये कहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो ये मोमबत्ती का सब्र आप देख रहे हैं कि उसने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो अपनी जात से मोम टपकाए और उस पर कायम हो जाए, इस्तकामत इख्तियार करे। तो इसी तरीके से एक इंसान को सब्र समझाने के लिए ये काफी है कि अल्लाह ने उसको इखलाक, किरदार, बहादुरी, शुजात, किरदार साजी, फैसला साजी, ये तमाम तर जितने टूल्स अल्लाह ने आपको दे रखे हैं, बर वक्त, हस्बे जरूरत, हस्बे हाल, जब आप अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे और उस सलाहियत पर आप जब जमकर खड़े हो जाएंगे, तो ये है वो साबरीन के जिन्हें कुरान सब्र करने वाला कहता है, कि जो हालात और वाकयात के मुताबिक अपनी सलाहियतों पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ जाएं, तो यकीनन आप अल्लाह की ताईद और नुसरत के भी हकदार हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ही का बताया हुआ सब्र है कि वो आपको बता रहा है कि आपने इस अंदाज में सब्र करना है। तो सब्र यूसुफ में, सब्र याकूब में आपको स्ट्रेटजीज दिखाई देंगी। कहीं वो हाथ पर हाथ रखे हुए बिल्कुल बैठे हुए नहीं है, बल्कि वो हर लम्हा हजरत याकूब डिक्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने बच्चों को कि आप यूं कर लें, आप यूं कर लें, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए कि वो अपने सब्र के अल्लाह ताला की वही के जरिए और बाकी इन तमाम तर चीजों के जरिए वो नबी भी हैं, तो उनको वो एक जिम्मेदारियां मिल रही हैं और वो उस पूरी जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में उन स्ट्रेटजीज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो सब्र जो है ना जी, वो तो नाम ही साबित कदमी का है, और सब्र तो नाम ही अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने का है। जिस तरह एक मोमबत्ती अपने जिस्म से मोम टपका पर उस पर कायम हो सकती है, इसी तरीके से एक फर्द या एक कौम भी अपनी सलाहियतों पर कायम हो सकती है जी। ये है सब्र कुरान की। बहुत शुक्रिया जी। ठीक जी।